ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੈਕਚਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ BA ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵੱਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ BA ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆ ਸ਼ਬਦ ਸਵੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਸਵੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। 40 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। 40 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਲੋਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਥੇ ਚੌੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਓ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ, ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਕਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭੀਜੇ ਕੰਬਲੀ ਰਾਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਕੜ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਲੀ ਭਿੱਜਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੰਬਲੀ ਭਿੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਜੋ ਸੀਜੋ ਕੰਬਲੀ ਅੱਲਾ ਵਰਸੇ ਮੇ, ਭੀਜੋ ਸੀਜੋ ਕੰਬਲੀ ਅੱਲਾ ਵਰਸੇ ਮੇ, ਜਾਏ ਮਿਲੇ ਤੁਧ ਸੱਜਣਾ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਬਲੀ ਭਿੱਜਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੰਬਲੀ ਭਿੱਜਦੀ ਹੋਵੇ,
चाहे जो मर्जी हुंदा होवे, मेरे रस्ते विच जिन्नियां मर्जी औकड़ां आउंदियां होण, पर मैं उन्हां औकड़ां दी परवाह नहीं करांगा। ते मेरा जिहड़ा परमात्मा दे नाल प्यार है उसनूं मैं कदे भी टुटण नहीं देवांगा। सो मैं इन्हां मुश्किलां नूं सर करदे होए, इन्हां नूं जितदे होए अपने परमात्मा दे दर ते उसनूं मिलण लई जरूर जावांगा। सो इसलिए जी फरीद जी का श्लोक हुण अगले श्लोक दे विच की कह रहे हैं वो असीं देखते हैं। इस ते हाँ जी कहते फरीदा फरीदा मैं भुलावां पग दा, मैं भुलावां पग दा, फरीदा मैं भुलावां पग दा, मत मैली हो जाए, मत मैली हो जाए। फरीदा मैं भुलावां पग दा, मत मैली हो जाए। फरीदा मैं भुलावां पग दा, मत मैली हो जाए। गहिला गहिला रूह ना जानदी, रूह ना जानदी, सिर भी मिट्टी, सिर भी मिट्टी खाए, मिट्टी खाए। हाँ जी हुण तुसीं कहोगे कि सिर भी मिट्टी खाए का मतलब देखो फरीद जी की कहते हैं, कहते फरीदा मैं भुलावां पग दा, पग जिहड़ी कि साडी सिक्खी दी पहचान है जी, कहते कि मैं यही भुलेखे विच रहा, कहते कि मेरी पग कदे मैली ना हो जावे। अपनी पग दे मैली होण दे डर कारण मैं कदे अपना जिहड़ा सिर सी उसनूं थल्ले नहीं रखिया, मतलब मैं कदे जमीन दे उत्ते सिर परने प्यार ही नहीं कि मेरी किते पग ना मैली हो जावे। पग मैली हो जाण दे डर तो मैं कदे जिहड़ा अपने सिर नूं हेठां नहीं रखिया। ते कहंदे पर मेरी रूह जिहड़ी हैगी आ ਉਹ ਇਹ नहीं जानती सी, पर कहते मेरी रूह नूं मेरी आत्मा नूं मैनूं ਇਹ नहीं पता सी कि मरण तो बाद मेरा जिहड़ा सिर है उसने मिट्टी विच ही मिल जाना है। ते फिर मेरे सिर ते रखी हुई पग जिहड़ी है मैनूं उसदा मैं उसदा क्यों मान करा। मैं अपने पग दे मैली होण दे भुलेखे दे कारण कदे सिर नूं थल्ले नहीं रख सकिया। ते पर मेरी आत्मा नूं मैनूं मेरी रूह नूं ये पता नहीं सी कि मैं अपनी पग नूं कदे मिट्टी नहीं लगन दित्ती, पर मरण तो बाद मेरे सिर ने भी तां मिट्टी विच ही मिल जाना है। मेरी पग नूं किते मिट्टी ना लग जावे, इसलिए इस भुलेखे कारण मैं कदे सिर जमीन ते नहीं रखिया। पग बन के कदे मैं सिर आपदा जिहड़ा जमीन ते रख के नहीं लेटिया, जा कदे सिर जमीन ते लगन ही नहीं दिता कि मेरी पग नूं किते मिट्टी ना लग जावे। पर कहंदे मैनूं ये नहीं पता कि मरण तो बाद मेरे सिर ने मिट्टी विच ही मिल जाना है। मेरा जिहड़ा सिर है वो मिट्टी विच ही मिल जाएगा। भाव कि मनुखी जिहड़ा शरीर है वो नाशवान है। सो सानू जिहड़ा है समा रहंदे परमात्मा दे नाम दा सिमरन कर लेना चाहिदा है। अगला श्लोक जी, अगले श्लोक दे विच की जिहड़ी गल आ फरीद जी करदे आ, कहंदे फरीदा फरीदा शक्कर शक्कर खंड शक्कर खंड निवात गुड़ निवात गुड़ फरीदा
शक्कर खंड निवात गुड़ माखियों माखियों माजा दूध फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियों माजा दूध सब्बे सब्बे वस्तु मिठियां सब्बे वस्तु मिठियां रब न पूजन तुद रब न पूजन पूजन तुद हाँ जी की कहते हैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि मनुख तेन संसारिक पदार्थों के जोड़ा मगर आ पिछे आ वो नहीं लगना चाहिए। ठीक है हुण कहते फ्रीज ही कहते कि संसारिक पदार्थों विच शक्कर शक्कर खंड शक्कर खंड गुड़ शहद ते माजे दा दुध फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़ माखियों माजा दूध शक्कर खंड निवात मिश्री गुड़ मक्खन माजी दा दूध ये सारिया ही संसारिक पदार्थ जिहड़े हन संसारिक चीज़ां मिठियां हन ये सब्बे वस्तुआं मिठियां सारिया ही वस्तुआं ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹਨ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਨ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੇਕਰ तेनू रब का नाम पूजन नहीं दिंदियां तां सब व्यर्थ हन क्योंकि इन्हां दी मिठास रब ना पूजन तुद कहंदे जेकर रब की भगती के रस्ते विच रुकावट हन तां सारियां ही बेअर्थ हन क्योंकि इन्हां दी मिठास जिहड़ी है और रब दी नाम दी रब दे नाम दी मिठास का मुकाबला नहीं कर सकती। रब का नाम इन्हां सारिया ही वस्तुओं के नाम दे नालों मिठा नाम है सो तू इन्हां दे मगर ना लग तेनू इन्हां दे मगर नहीं लगना चाहिए ते रब दे नाम की भगती समा रहते हुए ही कर लेनी चाहिए है। चलते हैं जी अगले श्लोक दे विच की समझाउण दी कोशिश कर रहे हैं शेख फरीद जी कहते अज ना सुती अज ना सुती कंत स्यों अज न सुती कंत स्यों अंग मुड़ मुड़ जाए अंग मुड़ मुड़ जाए अंग मुड़ मुड़ जाए मुड़े मुड़ अंग मुड़े मुड़ जाए जाए पुछो डोहागणी जाए पुछो डोहागणी डोहागणी जाए पुछो डोहागणी तुम क्यों नैन बहाए तुम क्यों नैन तुम क्यों रैन बहाए। हाँ जी इस दे विच जिहड़ा है फरीद जी ने जीव रूपी आत्मा नूं जिहड़ा इस्त्री दे रूप विच देखिया है जीव रूपी आत्मा चाहे मनुख है चाहे स्त्री है उसनों स्त्री के रूप में देखा है ते प्रभुपति परमात्मा नूं जिहड़ा ओ पति के रूप में देखा है। हुण इत्थे जिहड़ा है जी
अज न सुती कंत स्यों, कंत मैंने परमात्मा है, कंत मतलब पति परमात्मा। फिर जीव आत्मा रूपी स्त्री, जीव आत्मा रूपी स्त्री अपनी दशा का बयान किस तरह करती है कि जीव आत्मा रूपी स्त्री कह रही है कि आज मैं अपने प्रभुपति परमात्मा नू नहीं मिली, मैं अपने प्रभुपति परमात्मा नू मिलन नहीं गई, उसनू नहीं मिली, ते जिस कारण मेरा सारा शरीर जिहड़ा है वो दुख भोग रहा है। अज न सुती कंत स्यों अंग मुड़ मुड़ जाए, जिस कारण कहते मेरा जिहड़ा अज राती मैं अपने प्रभुपति परमात्मा दे नाल जिहड़ा नहीं सुती, उसनू मिलन नहीं गई, ते जिस कारण मेरा सारा मेरा सारा शरीर जिहड़ा वो दुख भोग रहा है। फिर कहते उन्हां इस्त्रियां नू पुछ के देखो जिन्हां दे पति जिहड़े हन दुहागणी, जिन्हां दे पति उन्हां नू छड्ड के चले गए हन, फिर उन्हां दी जिहड़ी हालत है वो किस तरह दी है, वो किस तरह रातां नू जिहड़ा नैन जिहड़ियां बहाउंदियां हन, वो किस तरह रो रहीआं हन, उन्हां दी हालत किस तरह दी होवेगी जिन्हां नू उन्हां दा पति जिहड़ा है प्रभुपति परमात्मा जिहड़ा है उस छड्ड के चला गया है। मैं एक दिन अपने प्रभुपति परमात्मा नू नहीं मिले तो मेरा सारा शरीर दुख रहा है, उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। पर उन्हां औरतां नू जाके पुछो जिन्हां दा पति उन्हां नू सदा लई छड्ड के चला गया है, उन्हां दी की हालत होवेगी, की उन्हां दी अवस्था होवेगी। सो इत्थे फ्रीद जी ने सिर्फ यही दस्सण की कोशिश की है कि सानू एक पल लई भी परमात्मा तो दूर नहीं जाना चाहिए, सानू सदा ही उस दे नाम दा सिमरन करते रहना चाहिए है। तुसी चाहे कोई भी काम कर रहे हो, जेकर तुसी काम करते हुए भी अपने परमात्मा नू अपने प्रभुपति परमात्मा नू याद रखते हो तो तुहाडा काम हमेशा ही सफल होवेगा। सो हमेशा कोशिश करो कि परमात्मा दा नाम थोनू कदे भी भुले ना, थोनू हमेशा ही परमात्मा दा जिहड़ा नाम है उसनू याद करते रहना चाहिए है। क्यों जो मनुख परमात्मा नू मनदा है उसके नाम का सिमरन करता है वो सदा ही निमरता दे राह ते चलदा है। उस दे विच काम क्रोध लोभ मोह हंकार रूपी जिहड़े विकार हन वो खत्म हो जाते हैं ते वो सदा ही इस संसार ते सुख भोगदा होया जिहड़ा चंगे कर्म करदा है। सो ये मनुख तेनू सदा अपने नाम परमात्मा का नाम लेना चाहिए है। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो विछड़ी हुई जिहड़ी हैगी आ जीव स्त्री उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। अगे चलते हैं जी, कहते अगले जिहड़ा हैगा श्लोक आ उहदे विच की समझाउण दी कोशिश कर रहे हैं सानू शेखप्रीत जी। कहते जोबन जांदे ना डरे, जोबन जांदे ना डरा, जोबन जांदे ना डरा, जे सोह प्रीत न जाए, प्रीत न जाए, जे सोह प्रीत न जाए, फरीदा कित्ती जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए, सुख गए कुमलाए। हाँ जी, कहते
ना डरा, जे सो प्रीत न जाए, फरीदा कित्ती जोबन प्रीत बिन, सुख गए कुमलाए। इस श्लोक दे विच जिहड़ी हैगी आ परमात्मा दे नाल प्रीत नूं जिहड़ा अगे वधाया गया है। पहले श्लोक विच भी परमात्मा दे नाल प्रीत पाउण दी गल, अगले श्लोक विच ओही जिहड़ी प्रीत आ उसनूं अगे वधा के की कहंदे आ कि कहंदे फरीद जी कहते हैं कि जोबन जाते ना डरा, मैनू अपने जवानी दे जान दा कोई डर नहीं है, पर मेरी परमात्मा दे नाल प्रीत नहीं टुटनी चाहिए। जे सो प्रीत न जाए, कहते मैनू अपनी जवानी दे जान दा डर नहीं है, पर मेरी जिहड़ी परमात्मा दे नाल प्रीत है वो नहीं टुटनी चाहिए। मैं कहते कहते फरीदा कित्ती जोबन प्रीत बिन, कहते मैनू मेरे परमात्मा दे नाल प्रीत ज़्यादा प्यारी है, मैनू अपनी जवानी प्यारी नहीं है, मैनू अपने जोबन दे जान दा अपनी जवानी दे जान दा डर नहीं है, पर मैनू मेरे परमात्मा की प्रीत बहुत प्यारी है। मैं अपने परमात्मा की प्रीत दे उत्तों पता नहीं किन्ने जिहड़े जोबन हैं वो कुर्बान कर सकती हाँ। कहते जेकर मैनू मेरे परमात्मा की प्रीत प्राप्त ना होवे तां मेरे लिए जवानी बेअर्थ है। क्यों? फरीदा कित्ती जोबन प्रीत बिन, सुख गए कुमलाए। बहुत ही ज़्यादा इस तरह के जोबन हैं, बहुत ही ज़्यादा इस तरह दीयां जवानियां हैं जिहड़ियां परमात्मा की प्रीत तो बिना, प्रभुपति परमात्मा के प्यार तो बिना, उस दे मिलाप तो बिना सुक गए हैं, कुमला गए हैं, खत्म हो गए हैं। सो मैनू मेरे जोबन दे जान दा डर नहीं है, मेरी जवानी दे जान दा डर नहीं है। मैं सिर्फ ते सिर्फ अपने परमात्मा दा प्यार, अपने परमात्मा की प्रीत जिहड़ी है उसनूं निभाउणा चाहुंदी हाँ, उसका प्यार जिहड़ा है वह सदा लई बरकरार रखना चाहती हाँ। कहते मैनू जवानी दे जान दा डर नहीं, जोबन दे जान दा डर नहीं, पर मेरी परमात्मा दे नाल प्रीत हमेशा बनी रहनी चाहिए है, क्योंकि परमात्मा की प्रीत तो बिना बहुत सारे जोबन, बहुत सारियां जवानियां इस तरह दियां हन जो कि सुक गईयां हन, कुमला गईयां हन, खत्म हो गईयां हन। सो इस श्लोक के विच भी प्रभु दे नाल प्रीत की गल जिहड़ी है वो शेख फरीद जी कर रहे हैं। सो अज जिहड़े हैगे इन्ने श्लोक असीं जिहड़े इस क्लास दे विच कीते, तुसीं इन्हां श्लोकां नूं एक एक करके अपनी कापी ते नोट जरूर करके रखियो, क्योंकि ये जिहड़े एग्जाम टाइम तुहाडी बहुत ज़्यादा मदद करनगे। शेख फरीद जी के श्लोक उन्होंने पढ़न की कोशिश करो, उन्होंने बोल के देखने की कोशिश करो, तो कापी के उत्ते नोट जरूर करके रखा करो तां जो अगे थोड़ी ये मदद कर सकन। सो साडी अज की जिहड़ी क्लास आ उस दे विच असीं जिहड़े शेख फरीद जी के इन्ने ही श्लोक करांगे, बाकी जिहड़े श्लोक आ वो शेख फरीद जी के असीं साडी अगली क्लास दे विच लैके आउण दी जिहड़ी कोशिश करांगे, अगली क्लास के घरां विच करांगे। सो अज की क्लास दे विच इन्ना ही जी। हुण तुसीं जिहड़ी हैगी इन्हां श्लोकां नूं पढ़ो, इन्हां नूं कापी विच नोट करके रखो तां जो तुसीं जे कुछ भुल्लो तां तुहानूं पता लग सके कापी खोलण तो बाद। ते तुसीं जे तुहानूं कोई भी होर जिहड़ी मुश्किल आउंदी आ वो सानूं जिहड़ी हैगी आ फोन करके मैसेज करके जरूर दस्सण दी कोशिश करिया करो। सो अज की क्लास दे विच इन्ना ही जी। मिलांगे हुण साडी अगली क्लास दे विच शेख फरीद जी दे श्लोकां नूं लैके अगे चलांगे, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਕਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।